వారణాసిలో జరుగుతున్న గంగా హారతి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేందుకు ప్రధాని మోదీ వస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. दिव्य भव्य नव्य काशी रोशनी से जगमगा रही है, आलोक से प्रकाशित है और ऐसा लग रहा है कि आज दूसरी बार देव दीपावली सरीखा आयोजन है और सही मायने में ये शिव दीपावली का आयोजन है. शुभेंदु. Thank you, Ashwani. On your screens, you can see the grandeur of the ghats of Kashi, of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi, accompanied by Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, taking a stroll on the ghats of Kashi. It is almost reminiscent of Deep Deepavali festivities, where the ghats are completely decked with beautifully lit diyas. In a similar fashion, it is an evening of celebration. And why not? Earlier today, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And from Ravidas Ghat, Prime Minister is about to take a cruise which will give him the view of the beautifully decorated ghats of Kashi and lakhs of diyas that have been lit to honor, to pray to the holy Ganga. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय रविदास घाट से जा रहे हैं. विवेकानंद क्रूज है. दिन में जब राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट आए थे तो अलकनंदा पर वो आरूढ़ थे और अब स्वागत किया जा रहा है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. इस विशिष्ट आयोजन के सब साक्षी बन रहे हैं. आज का दिन बेहद विलक्षण रहा. सनातन संस्कृति के इतिहास में जब दिव्य भव्य नव्य श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और अब शिव दीपावली सरीखा उत्सव है, महोत्सव है, दीपकों का महोत्सव है, विकास का महोत्सव है, सनातन संस्कृति के दिव्य पुंज बन रहे काशी का महोत्सव है. ये सनातन संस्कृति के अद्वितीय स्वरूप का विवेकानंद नाम का ये क्रूज, इसके भी निहितार्थ हैं. शुभेंदु. धर्म ध्वजा अगर पहली बार आधुनिक युग में किसी ने वैश्विक स्तर पर भारत की फहराया तो स्वामी विवेकानंद जी ही थे. विवेकानंद जी के सिद्धांतों को लेकर एक हाथ में और अंत्योदय का मंत्र दूसरे हाथ में लेकर सनातन संस्कृति और नए भारत के गठन का, नए भारत के उत्कर्ष की नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और इस समय वो पहुंच चुके हैं एमवी स्वामी विवेकानंद पर और यहीं से वे काशी के घाटों का, दिव्य घाटों का अवलोकन करेंगे. काशी जो कि घाटों का शहर है, काशी जो कि मंदिरों का शहर है, काशी जो कि आध्यात्मिक शहर है, काशी जो नित्य नूतन और चिर पुरातन है. Those visuals coming in from Swami Vivekananda cruise on the holy river Ganga, and Prime Minister in a short while from now will begin his sailing on the cruise, once again taking in the breathtaking sights of the ghats of Kashi, of Varanasi. All the ghats have been decorated as if the festivities of Deepavali have returned. Lakhs of diyas have been lit a short while ago. Youngsters, elderly people, all came together. And in those visuals you can see the preparations have begun for the very special Ganga Aarti. Varanasi is a sacred and is said to be the oldest city, a living city of the world on the banks of holy Ganga. And Ganga Aarti is performed every evening by a group of specially designed priests. Is a commitment to Lord Shiva, is a commitment to the holy Ganga and all the gods and goddesses who descend on earth on this very special moment. बेहद विलक्षण क्षण है, नैनाभिराम दृश्य है.
अविस्मरणीय और अकल्पनीय संकल्पना आज साकार हुई है और उसी का महोत्सव है ये शिव दीपावली सरीखा आयोजन। गंगा की लहरों में ज्योति को छूता सा, कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल ज्योतित मां का पूज्य भाल है। मां भारती का भाल, मां भारती का हृदय स्थल, मां भारती का प्रेरणा स्थल, सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र काशी आज दीपकों से जगमग है, क्योंकि आज बाबा के धाम का, दिव्य नव्य धाम का लोकार्पण हुआ है और ऐसा तेज पुंज, ऐसा आलोक पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है जिसमें उत्कर्ष करते भारत और उत्कर्ष करते काशी की झांकी है। And the beautifully decked Swami Vivekananda cruise, almost reflecting the lights and beauty of the ghats of Varanasi. The day is a special one for the people of Kashi, as all of them have come out of their homes to gather at the ghats. As Prime Minister inaugurated Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi earlier today, and in his address he said, Vishwanath Dham is not just a grand building, it is a symbol of Sanatan culture of India. It is a symbol of our spiritual reality, a symbol of India's ancient traditions, India's energy, and India's dynamism. There, Prime Minister Narendra Modi on board Vivekananda cruise, and you can see a glimpse of the ghats of Kashi from a distance, all lit up, all decked up beautifully to celebrate this very special day of the inauguration of Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Prime Minister interacting with guests on board Vivekananda cruise, and in a short while from now, the majestic Ganga Aarti is expected to begin. Ashwini. आज कर्मयोगी ने आदि योगी को कार्यांजलि दी। बाबा विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य परिसर का लोकार्पण हुआ और शिव दीपावली सरीखा आयोजन आज काशी में इस समय हुआ है, क्योंकि आज महोत्सव है काशी में, आज महोत्सव है समूचे भारत में। आज ये स्वर्ण शिखर नए रूप में, नए स्वरूप में जगमग हैं, क्योंकि आज नए प्रकाश का, नए आलोक का यहाँ से देदीप्यमान नक्षत्र भी भारत की सांस्कृतिक विरासत में जुड़ा है। बेहद विशिष्ट, बेहद अद्भुत ये दृश्य आप देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से कि किस तरीके से समूची काशी को झालरों से, लड़ियों से, दीपकों से सजाया गया है। असंख्य दीप इस समय यहाँ पर गंगा घाट पर जलाए गए हैं और सरीखा इस तरीके से माना जा सकता है कि जैसे गंगा और आकाश गंगा का सम्मिलन हो गया हो काशी में। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर धर्म, कर्म, आध्यात्म, वैराग्य, जीवन, नवोत्कर्ष, सृजन सबका संगम हो गया हो और इसी संगम और इसी त्रिवेणी और इसी महामिलन का आज उत्सव है बाबा के धाम में शिव दीपावली के रूप में। तब जबकि घाट जगमग हैं, व्यक्ति प्रफुल्लित हैं, मानसिकता उल्लासित है और समूचा काशी हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान है। And those visuals of Ganga Aarti, prayers to the Holy Mother that nurtures the planet, the people. Every evening, people in Kashi, devotees, tourists, they all gather day after day to witness the majestic Ganga Aarti. And in those visuals, Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise with other esteemed guests. And Prime Minister, during this two-day visit, will also participate in a conclave of chief ministers of various states, a conclave that will provide an opportunity to share governance-related best practices. It is his vision of strengthening Team India, Centre and the states working together, but it will happen in the backdrop
of the beautifully decked ghats of Kashi. और ये विहंगम दृश्य, ये नयनाभिराम दृश्य, शिव दीपावली जैसा महोत्सव, अविश्वसनीय और अकल्पनीय संकल्पना के साकार होने का दिन, गंगा आरती जो कि यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन अहर्निश युगों युगों से चल रही है। कहा जाता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गंगा की आराधना करने का सौभाग्य, गंगा में स्नान का सौभाग्य, गंगा में अवगाहन का सौभाग्य, गंगा में अर्पण और तर्पण का सौभाग्य जिन व्यक्तियों को मिलता है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होता है। तो आज समूची काशी में शिव दीपावली महोत्सव का आयोजन है, क्योंकि शिव के धाम, बाबा के धाम में नव्य दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारित पुनर्निर्माण कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। ये दीपावली सरीखा ये अनुभव कराता है शुभेंदु। अगर देखें तो जिस तरीके से समूचे काशी को सजाया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये स्वर्ण स्तंभ, ये गर्भगृह, ये मीनारे, नीलांबर कार्यांजलि सरीखा है। दिगंबर यहाँ पर साक्षात विद्यमान है और दिगंबर को नीलांबर और गंगा से, मंदाकिनी से, त्रिपथगा से, सुरसरी से, गंगा से मिलाने का जो ये महा और पुण्य पुनीत कार्य हुआ है, उसी का ये महोत्सव है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से अलग अलग घाटों पर विविध आयोजन करके इस महोत्सव में विविध रंग भरे जा रहे हैं। And the spectacular Ganga Arati in progress. You can see on your screens the priests in charge of performing the Arati in their traditional attire, dhoti, kurta, along with the gamcha on their shoulders. And that glimpse of the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, a beauty that cannot be described in words. Lakhs of diyas, lakhs of lights that have been used to decorate the ghats today. And add to that the spiritual energy of the people of Kashi, all coming together to lit the temple town like never before. शुभेंदु ये दृश्य देखिए, यही कहा जाता है कि अर्धचंद्राकार वलयाकार स्थिति में मां गंगा भगवान शिव के केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा बदल देती हैं और उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। अद्भुत दृश्य थे। जैसे शंकर जी के, भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, उसी तरह अर्धचंद्राकार स्थिति में मां गंगा ने यहाँ धारा अपनी मोड़कर भगवान के चरण पखारने के लिए वो केवल यहाँ पर आई। नयनाभिराम दृश्य और काशी में शिव महोत्सव का आयोजन, घर, मंदिर, गलियारे, गलियां, सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है समूची काशी का। समूची काशी में शिव दीपावली का आज आयोजन है। घरों घरों को सजाया गया है। एक एक घर की हर चौखट पर दीपक जले हुए हैं। घाटों पर असंख्य दीपकों की झिलमिल झालर और रोशनियां इस समय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं, क्योंकि आज काशी में महोत्सव का दिन है। क्योंकि आज काशी के बाबा का, दिगंबर का, भोलेनाथ का, शिवशंकर का, काशी विश्वनाथ धाम का, नव्य और दिव्य धाम का आज लोकार्पण हुआ है। And as people continue to gather to be a part of this exceptional celebration, you see Ganga Arati in progress, the priests in charge, step by step taking the Arati forward, elevated planks, brass lamp, idol of holy Ganga, flowers and incense sticks, all together to honor the holy Ganga. And the visuals you can see Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise, and from a distance the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi beyond words, reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face
of the ancient temple town of Varanasi. And there Ganga Aarti in progress and Prime Minister watching from the cruise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट से चल चुके हैं। अलग अलग घाटों से होते हुए जिस तरीके से समूची काशी आज सजी है, शिव दीपावली का आयोजन है और दीपकों के परंपरा असंख्य दीपकों की लड़ियां काशी के घाटों को आज और नयनाभिराम, विहंगम और सुंदर बना रही हैं। ये विलक्षणता को प्रदान कर रही हैं। काशी की कांति में और श्री चंदन लगा रही हैं और काशी को और महिमावान बना रही हैं। काशी खुद में महिमा वर्णित है, लेकिन दीपों को जलाकर शिव दीपावली का आयोजन करके आज इसे और विशिष्ट किया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने की कामना की जाती है। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने का जो पुंज होता है वो दीप होता है। कहा यह गया है कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अजय। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्यादीपो नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, मम बुद्धि प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं, आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्, आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपमालाओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, शिव दीपावली का जो ये 3 दिनों का महोत्सव पहली बार इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसकी शुरुआत की गई है, उसकी छटा तो जब आप यहाँ पर आएंगे, नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे, तब आपको वो अनुभूति होगी कि इन ज्योतियों का मतलब है क्या, इन ज्योति द्वीपों का मतलब है क्या। ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएंगी। वैसे भी बार बार हम सुबह से ये कह रहे हैं कि ये काशी का भूभाग पूरी पृथ्वी से एक अलग भूभाग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और गंगा के बीच में से घाटों की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके परिवारजन के साथ इस वक्त शिव दीपावली का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आप किसी भी दिन आकर के यहाँ पर काशी में ले सकते हैं और वही अद्भुत आनंद आपको उस आनंद की वन में लेकर के जाएगा जिसके लिए काशी जानी जाती है, जिसके लिए इस काशी को आनंद कानन या आनंद वन कहते हैं। कहते ही इसीलिए हैं कि ये दीपक की जो ज्योति है वो आपको उस परब्रह्म की ओर लेकर के जाती है। दीपो ज्योति जनार्दन है, क्योंकि दीप की ज्योति को हम जनार्दन मानते हैं, भगवान की संज्ञा दी जाती है। और जो हमारे ऋग्वेद हैं उसकी जो शुरुआत हुई है वो भी अग्नि से ही हुई है और भगवान राम के नाम में जो र अक्षर है वो अग्नि का बीज मंत्र है। इस तरह से जो हम दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीपों के माध्यम से जो हम आवाहन करते हैं अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने आप में वो आपको एक दूसरी सत्ता में लेकर के जाता है जो आपकी वास्तविक सत्ता है। और जो माया के वश में होकर के, मोहित होकर के आप अपने स्व के स्वरूप को भूल जाते हैं, ये दीप की ज्योति आपको आपके अपने स्व स्वरूप की ओर ले जाती है, आपके अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। और आपका अपना वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है वो काशी में ही आपको आकर के इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप हैं क्या। और इसीलिए इस शिव दीपावली की महत्ता जो 3 दिनों तक चलने वाली है, इस समारोह के एक तरह से उसके सेलिब्रेशन में वो आपको अपने आप में स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको काशी आना पड़ेगा और काशी में अपने आप को काशी वास के लिए तैयार करते हुए अपने आप को काशी के साथ मनाना होगा। ये बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात है कि अपने अंदर के अज्ञान को, अपने अंदर के लोभ को, अपने अंदर के मोह को छोड़ करके, जब आप राग को छोड़ करके यहाँ पर काशी में आएंगे, तब आपको उस परब्रह्म की सत्ता का अवचेतन होगा और फिर आप अपने आप को स्वस्वरूप में, अपने आप को वास्तविक स्वरूप में पाएंगे, जिसके लिए
ये आपका मनुष्य जीवन हुआ है और वही वास्तविक अर्थ है इस शिव दीपावली का। And those visuals of beautiful Varanasi and Kashi lit with the diyas, lit with the lights of devotion, lit with the lights of spirituality and the breathtaking reflection in the holy waters of Ganga. Ganga Arati symbolizes a prayer for the mother, prayer for holy Ganga, prayers that are taken forward to the gods and goddesses. Ganga isn't just a river in India. It is the Divine Mother, giver of life, giver of salvation. And those lights of Ganga Arati enlighten every heart that is able to witness it. And we at Doordarshan are bringing you the spectacular celebration onto your screens from the ancient temple town of Kashi. माता गंगा साक्षात यहाँ पर भोले शंकर के चरण पखारने के लिए जब उत्तरवाहिनी होती हैं तो कहा गया है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर स्वरूप में आदि योगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा और विश्वनाथ जी के बीच का अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। निर्बाध आवागमन के लिए जो नव्य निर्माण किया गया है उसका आज भव्य और दिव्य लोकार्पण हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आज महोत्सव है काशी में, दीपोत्सव है काशी में, क्योंकि खुद काशी के लिए, सनातन संस्कृति के लिए ये आज विशिष्ट दिन है, बेहद विशिष्ट दिन है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से होते हुए आगे 80 घाट, तुलसी घाट, अन्य घाटों को पार करते करते धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं जो ये नयनाभिराम दृश्य है ये युगों युगों तक ये कालखंड के कपाल पर, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर जैसा रहेगा। और ये आज का दिन सनातन संस्कृति में सांस्कृतिक उत्कर्ष के संक्रांति के दिन के रूप में दर्ज होगा। अजय। देखिए रश्मि, बहुत सारे लोग इस सवाल को अपने मन में इस वक्त रख करके अपने आप से पूछ रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है। गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। इस भव्य काशी, नव्य काशी के उत्सव में ये संकल्प क्यों लिया गया कि हम 3 दिनों तक भगवान का आवाहन करेंगे। काशी के सभी लोग अपने घरों के देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म पर सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च, श्रद्धा सा प्रसीदति। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है। और माँ गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा के तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथा वरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें? संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यमर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तो हर कंकड़ शंकर है। और इसीलिए
यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा। And you're witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering Ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, the holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized, but at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the Ganga Arati that you're witnessing on your screens. विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय काशी के वैभव में और विराट स्वरूप सम्मिलित हुआ है। और आज काशी के घाटों में, काशी के घर घर में, काशी की गली गली में, काशी के कूचे गलियारे में, काशी के भवन प्रासाद में, काशी के मोहल्लों में, काशी के घाटों पर सर्वत्र रोशनी है, आलोक है, दिव्य प्रकाश है, क्योंकि आज काशी में शिव दीपोत्सव है, आज काशी में शिव दीपावली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया तो उन्होंने देश से 3 चीजें मांगी। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से ये मांगते हैं बाबा के धाम में कि स्वच्छता का संकल्प लें। स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा और अनेक नगरों का, अनेक जगहों का कलेवर बदल चुका है, स्वच्छ हुआ है, लेकिन अब भी स्वच्छता हमारा संकल्प हो, सृजन हमारा संकल्प हो और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारा संकल्प हो। ये 3 संकल्प उन्होंने लिए हैं और इसकी परिणति, इसकी अंतिम चरमोत्कर्ष जो बिंदु होगा वो जगत गुरु भारत का निर्माण होगा। तो ये संकल्प हमें पूरा करना है और आह्वान कुछ इसी तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दीपोत्सव के जरिए, दीपों के जरिए, उपमाओं के जरिए उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। और जो यज्ञ अधूरा है, जो आहुति बाकी है, वो है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना। और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आरूढ़ करेंगे। And as you witness the Ghats of Kashi shining in the lights of the holy Arati of Ganga Maiya, we reflect upon Prime Minister's address earlier today as he inaugurated the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And those lights, the spectacular beauty and spiritual power of the temple town, Prime Minister said the dedication of Kashi Vishwanath Dham will give a decisive direction to India and will lead the nation to a brighter future. The complex is not just a brick and mortar temple. It is a witness. It is a testimony of our capability, of our collective duty. With determination and concerted thought, nothing is impossible. As Prime Minister looks on the beautifully lit Ghats of Kashi, we remember the 3 resolutions that he has asked from the people of the country today. 1, cleanliness, Swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible.
cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the Holy Aarati of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं। దిల్షుక్ నగర్ కి ఒక విశేషం. మీ లలిత జ్యువెలరీ దిల్షుక్ నగర్ కు వచ్చేసింది. డిసెంబర్ 10న బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభోత్సవం. లలిత జ్యువెలరీ, చైతన్యపురి సర్కిల్, దిల్షుక్ నగర్, హైదరాబాద్. లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి. డబ్బులు చాలా చాలా ఆదా చేస్తారు. డబ్బులెవరికి ఊరికే రావు. यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में, और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग इसके अगले चरण में और 145 शिवलिंगों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इन्हीं घाटों के आसपास वो शिवलिंग होंगे और अपनी अपनी महत्ता के अनुसार
आदि